رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ قوم ایک، مذہب ایک، سجدہ ایک ہستی کو، مانا خدا کے آخری نبی کو۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ماہ رمضان ایک انعام کی صورت ہمیں ملا ہے، جہاں ہم سمجھیں گے ایک دوسرے کے تقاضوں کو، جہاں ہم بانٹیں گے خوشیاں اور رونقیں۔ ناظرین آداب، سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کو ماہ رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ نیوز 18 اردو کے خاص پروگرام رمضان کی رونقیں میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو مدھیہ پردیش کی دارالحکومت بھوپال میں ماہ سیام میں رمضان کی کس طرح کی رونق ہوتی ہے، یہاں کے شب و روز کیسے ہوتے ہیں، ہم آپ کو دکھائیں گے۔ بھوپال ایک تاریخی شہر، ایک ایسا شہر جسے نوابوں کی نگری، جھیلوں اور تالابوں کے شہر کے ساتھ ساتھ مساجد کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں یہاں کے شب و روز کیسے ہوتے ہیں یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن آئیے پروگرام کے پہلے سے ہم آپ کو لے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ بھوپال کی تاریخ اور یہاں پر ماہ رمضان کے شب و روز کا اہتمام کیسے کیا جاتا ہے۔ رحمت کے کھلے دروازے، رمضان آ گیا، رحمت کے کھلے دروازے، رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں، رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں، رمضان آ گیا۔ رحمت کے کھلے دروازے، رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں، رمضان آ گیا۔ بھوپال مدھیہ پردیش کا ایک قدیم تاریخی شہر ہے۔ بھوپال مدھیہ پردیش کے مالوا کا ایک اہم حصہ ہے۔ ریاستی عہد میں یہ تاریخی شہر ریاست بھوپال کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ آزادی کے بعد بھی اس کی تاریخی عظمت برقرار ہے اور یہ تاریخی شہر آج بھی مدھیہ پردیش کا دارالحکومت ہے۔ ریاستی عہد میں تقریباً 225 سال تک یہ تاریخی شہر مسلم تہذیب و تمدن کا مرکز رہا ہے۔ ملک کو آزادی 1947 میں حاصل ہوئی، لیکن ریاست بھوپال میں آزادی کے 2 سال بعد تک بھی خود مختاری برقرار رہی۔ جون 1949 میں ریاست بھوپال کا انڈین یونین میں انضمام ہوا اور بھوپال کو پارٹ سی اسٹیٹ میں شامل کیا گیا، اور جب 1 نومبر 1956 میں ریاست مدھیہ پردیش کی تشکیل ہوئی تو یہ تاریخی شہر مدھیہ پردیش کی راجدھانی بنا۔ مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال کی تاریخ 1000 سال سے زیادہ قدیم ہے۔ اس شہر کو پرمار ونش کے راجا بھوج نے بسایا تھا۔ بھوپال پر 1010 سے جون 1949 تک پرمار راجا، گونڈ راجا اور مسلم نوابوں کی حکومت رہی ہے۔ بھوپال میں مسلم تہذیب کی نشوونما مالوا کی مسلم تہذیب سے جڑی ہوئی ہے۔ ریاست بھوپال کے بانی سردار دوست محمد خان نے 1722 میں اس ریاست کو قائم کیا تھا، لیکن یہاں پر مسلم تہذیب کا ارتقاء اس سے قبل ہو چکا تھا۔ ریاست بھوپال کے پہلے قاضی محمد معظم سنبھلی نے ریاست کے قیام سے قبل 1718 میں اردو میں تفسیر ہندوی کے نام سے قرآن کریم کی تفسیر لکھ دی تھی۔ ریاست بھوپال پر جنوری 1722 سے جون 1949 تک مسلم نوابوں کی حکومت رہی ہے۔
इस शहर पर 9 मर्द और 4 खातून नवाबों ने हुकूमत की है, लेकिन भोपाल की तरक्की और इस्लामी शिआर को कायम करने में जो किरदार बेगमाते भोपाल ने अदा किया है वो मर्द नवाब नहीं कर सके। भोपाल की अहम तारीखी मसाजिद की तामीर भी बेगमाते भोपाल के हाथों ही हुई है। इस शहर में 510 मसाजिद हैं, जिसमें एशिया की बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद भी शामिल है। अगर आबादी और रकबे की बात करें तो भोपाल में मसाजिद की तादाद दुनिया में तीसरे नंबर पर है। मसाजिद की कसरत में पहले नंबर पर मिस्र, दूसरे नंबर पर ढाका और तीसरे नंबर पर भोपाल शहर का नाम आता है। ऐसा नहीं कि भोपाल में मसाजिद की तामीर सिर्फ नाम के लिए हुई, बल्कि रमजानुल मुबारक के अय्याम में यहाँ की मसाजिद के रौनक और शब-ओ-रोज देखने से ताल्लुक रखते हैं। भोपाल के दानिश्वर इस ताल्लुक से कुछ इस तरह अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। भोपाल में जिस तरीके से रमज़ान का अहतमाम किया जाता है मुख्तलिफ शहरों से अलग है। यहाँ ऐसा लगता है कि शाम के वक्त आप देखिए मगरिब के अजान के आसपास कि पूरे शहर में फरिश्ते ही फरिश्ते उतर आए, हर मस्जिद भरी हुई रहती है, इबादत का एक माहौल बन जाता है। रोज़े की पाकीज़गी, रमज़ान की पाकीज़गी और बरकतों को बहुत ही संजीदगी से लिया करते थे। मुझे तो ख़ास तौर से उन दिनों शहरी जगाने वालों की आवाज़ अच्छी लगती थी। शहरी की आवाज़ जो भी दरवेश फ़करा लगाते थे इतनी दिल नशी और दिलकश होती थी तो ख़ुद उठ के लिहाफ सर्दियों में फेंक देते थे, गर्मियों में आंगन में कूदते फिरते थे और कहते थे कि जल्दी से शहरी का सामान लाओ। यहाँ के हुक्मरान भी उसी अंदाज के थे। कहा जाता है कि नवाब हमीदुल्लाह खान साहब जब कभी आते थे तो महल के दरवाजे के ऊपर 2 तश्तरियाँ लेके उनके खादिम खड़े रहते थे। एक के अंदर खारे दाल और खारे होते थे, यहाँ लोग आमतौर पे खारे और दाल खाते हैं, और एक में मोती चूर के लड्डू होते थे। वो दोनों में से मुट्ठियों भर के उठा लेते थे और नमाज़ पढ़ने चले जाते थे। ये उन लोगों की सादगी है जिनके घरों के अंदर नहायत ही बेहतरीन किस्म के बावर्ची खाने मौजूद थे, इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ तक कि नवाब साहब की जो बड़ी बेगम थी कहलाती थी, बड़ी बिया, उन्होंने बहुत खूबसूरत 2 किताबें लिखी कि किस तरह से मगरिबी खाने पकाए जाएं और किस तरह से मशरक़ी खाने पकाए जाएं। यानी उनको सब मालूम था, लेकिन कैसे सादा लोग थे, कैसा सादा ज़माना था। आज के ज़माने में सब कुछ है पर सुकून नहीं है। सब होने के बावजूद ऐसा एहसास होता है कि जैसे कुछ खो गया है, सिवाय एक बात के, वो है रूहानी सुकून। भोपाल का शुमार खित्ते मालवा की अहम मुस्लिम रियासत में होता था। भोपाल की अपनी एक तहजीब, अपनी एक दरख्शां रिवायत रही है। नवाबी अहद में यहाँ पर रमज़ान के रोज़े खोलने के लिए तोप के गोले दागे जाते थे और रोज़ादारों के लिए रियासत की जानिब से शहर की सभी मसाजिद में ख़ास इफ्तार का एहतमाम किया जाता था। अब नवाबी अहद तो रहा नहीं, लेकिन रिवायत अब भी बाकी है। अब शहर की सभी मसाजिद में अवामी तौर पर अफ्तार भेजने का काम किया जाता है। अब शहर में अफ्तार के लिए तोप के गोले तो नहीं दागे जाते, लेकिन इसकी जगह पटाखे छोड़कर कदीम अहद की याद ताज़ा की जाती है। हर शख्स को अपने शहर से लगाव होता है, लेकिन भोपाल उन तारीखी शहरों में से है जहां पर लोग माह रमज़ान में अपना वक्त जिक्र व अफकार में गुजारने के लिए आते हैं। इनका मानना है कि बुजुर्गों के शहर में माह रमज़ान में जिस तरह से लोग इबादत की तरफ माइल होते हैं, इससे शहर में जो एक ख़ास रूहानी फ़ज़ा देखने को मिलती है वो दूसरे शहरों में कम ही देखने को मिलती है। देखिए, ये भोपाल तो एक नवाबों का शहर चला आ रहा है और इसमें रमज़ान की बरकतें और रमज़ान की तैयारियां और उसके साथ उसका एहतराम बहुत किया जाता था और किया जाता है। होता ये था कि उस ज़माने में तो तोप दागी जाती थी, कुछ ईदगाह से चलती थी और कुछ जेल की पहाड़ी पे से चलती थी, तो बाकायदा ऐलान किया जाता था इफ्तार का और सहर का, और लोगों के जो होटलों पे पर्दे डल जाते थे कि जो रोज़ेदार नहीं है वो छुप के एहतराम करें और अंदर जाके खाना खाएं।
لیکن اور ہوتا یہ ہے اب بھی کہ اب ان کو ریپلیسمنٹ کر دیا گیا ہے، گولا چلتا ہے، لیکن وہ روایت قائم ہے۔ ایک خاص ماحول اس زمانے میں ہوتا تھا، وہ ماحول ابھی بھی ہے، ایسا نہیں ہے، ابھی بھی اجتماعی افطار ہوتا ہے، ختم قرآن ہوتا ہے مساجد میں، گھروں میں شبینہ بھی ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن حالات کی تبدیلی کے ساتھ ظاہر ہے کہ جو برق رفتار تبدیلی ہوئی ہے اس کے سبب بہت سی تبدیلیاں ہو گئی ہیں۔ نئی جنریشن بھی روزے رکھتی ہے لیکن اپنے انداز سے، اب انداز بدل گئے ہیں، کھانے کے بدل گئے ہیں، رہنے کے بدل گئے ہیں، اور لیکن ظاہر ہے کہ نماز روزہ تو وہی ہے اور ابھی بھی وہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ ایک رونق چاروں طرف پھیل جاتی ہے، جدھر دیکھیے ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم کہیں ایک پاکیزگی کے ماحول میں رہ رہے ہیں، اور یہ جو روزہ ہے اس کے متعلق تو ایک خیال ذہن میں آ رہا ہے کہ دن بھر کی تشنگی سے بدن کو سنوار کر ہم نے خود اپنے آپ کو شاداب کر لیا، تو وہ کچھ کیا احساس ہو رہے ہیں یہ ہمیں اپنے اندر محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ 1950-51 سے آج تک میرا کوئی روزہ جو ہے وہ قضا نہیں ہوا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے روزے رکھنا شروع کیے تو روزوں کا بڑا اہتمام ہوا کرتا تھا، ریاست کا زمانہ تھا، نوابان یہاں موجود تھے، اور 1950 سے پہلے اس کا ولینیکرن ہو چکا تھا، انضمام ہو چکا تھا، اس کے باوجود یہاں کی تہذیب قائم تھی۔ ریاست بھوپال کی بنیاد دوست محمد خان نے رکھی تھی، اور ریاست کا خاتمہ 1949 میں نواب حمید اللہ خان کے عہد میں ہوا۔ دوست محمد خان نے مشترکہ تہذیب کے جس روشن نقوش پر ریاست کی بنیاد رکھی تھی، بعد کے نوابین نے اسی پر عمل پیرا ہو کر ریاست بھوپال کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ بھوپال مشترکہ تہذیب کا شہر ہے اور اس کی گنگا جمنی تہذیب دور دور تک مشہور ہے۔ ابتدا سے ہی یہاں پر جو گنگا جمنی تہذیب قائم ہوئی تو اس کے روشن روایت آج بھی برقرار ہے۔ ریاستی عہد میں جب یہاں کے نواب مسلمان ہوا کرتے تھے تب بھی ان کے وزیر اعظم غیر مسلم ہوتے تھے۔ ساتھ رہنے اور مل جل کر تمام تیوہار منانے کی روایت یہاں صدیوں سے قائم ہے۔ ماہ رمضان میں یہاں کے ہندو بھائی اپنے مسلم بھائیوں کے لیے کثرت سے روزہ افطار کا اہتمام کرتے ہیں۔ بھوپال کی مشترکہ تہذیب کے بارے میں یہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں آپ خود سنیے۔ یہاں چاروں طرف چاہے وہ کوئی بھی تیوہار آئے، کوئی بھی اچھے برا وقت آئے، سب مل جل کے ایک ساتھ اس کو شیئر کرتے ہیں۔ یہ ہمارے شہر کی بہت خاص بات ہے، جو آتا ہے وہ اسی لیے یہی رہ جاتا ہے۔ بھوپال شہر میں ہم لوگ عید، دیوالی، ہولی، راکھی سارے تیوہار اس طرح سے مناتے ہیں کہ اگر باہر کا آدمی آئے تو اسے یہ پہچان کرنا مشکل ہو جائے گا کہ اس میں کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے، کس کا تیوہار ہے اور کون اس میں شامل ہو رہا ہے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام رمضان کی رونقیں، اور آج ہم موجود ہیں آپ کے شہر بھوپال میں۔ ناظرین پروگرام کے اگلے حصے میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ بھوپال میں افطار اور سحر کا کس طرح کا خاص بازار ہوتا ہے، یہاں پر وہ کون کون سے خاص بازار ہیں جہاں پر ہمیں رمضان میں خاص رونق دیکھنے کو ملتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے سے چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم، اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 اردو کا خاص پروگرام رمضان کی رونقیں۔ ناظرین بھوپال کی بات کریں تو بھوپال میں ماہ رمضان میں کچھ خاص بازار ہوتے ہیں جہاں پر روزے داروں کی خاص بھیڑ دیکھنے کو ملتی ہے۔ بھوپال کی اتوارا بازار کی بات کریں، بدھوارا کی، جہانگیر آباد کی، شبن چوراہے کی، یا پھر قاضی کیمپ کی بات کریں، یہاں پر رمضان کے ایام میں خاص طور سے افطار اور سحر کے وقت جو بھیڑ ہوتی ہے وہ ہمیں دوسرے وقت میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ کس طرح کا یہاں پر خاص ماحول ہے، آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر۔ بھوپال کو نوابوں کی نگری، جھیلوں اور تالابوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ اس شہر کے امتیازات میں جہاں قدرت کا حسن شامل ہے، وہیں اسے مساجد کا بھی شہر کہا جاتا ہے۔ نوابوں کی نگری میں ماہ رمضان کے رونق دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ماہ رمضان میں یہاں کے شب و روز بدل جاتے ہیں۔ دن میں وہ سڑکیں جہاں عام دنوں میں راستہ چلنا مشکل ہوتا ہے، وہاں پر دوپہر تک اکا دکا گاڑیاں ہی دکھائی دیتی ہیں، اور رات کی بات کی جائے تو پوری رات نمازیوں کی چہل قدمی سے آباد رہتی ہے۔ بھوپال میں ریاستی عہد کا خاتمہ ضرور ہو گیا، لیکن اس کی روایت آج بھی اس شہر میں قائم ہے۔ سحری کے اوقات میں عام طور پر لوگ
अपने घरों में तो सहरी करते ही हैं, लेकिन भोपाल में सहरी के वक्त भी दस्तरखान को सजाने की रिवायत है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि सहरी में भी अपने अजीजों के दावत का एहतमाम करते हैं। भोपाल में सहरी का दस्तरखान जब लगाया जाता है तो इसमें घर के तमाम अफराद की ख्वाहिश का एहतराम तो होता ही है, लेकिन हर घर के दस्तरखान पर दूध के साथ फेनी जरूर देखने को मिलती है। गोया दूसरे लफ्जों में ये कहा जा सकता है कि फेनी और दूध के बगैर भोपाल में सहरी के दस्तरखान का तसव्वुर मुमकिन ही नहीं है। कुछ लोगों के यहाँ दस्तरखान पर बिरयानी और फेनी के साथ शीरमाल और खजूर भी देखने को मिलती है। सहरी का टाइम बहुत मुख्तसर दिया जाता है, तो उसमें क्या है, सबकी हमें ख्वाहिशात का ख्याल रखना पड़ता है इसमें। अब जैसे कि हमने हमारे शोहर को और हमारे भाई को बिरयानी पसंद है, तो हमने ये बिरयानी बनाई है उनके लिए। तो अब ये जो खाएंगे हम लोग, यही हमारा सब होगा। किसी को दही बड़े पसंद हैं, किसी को दो प्याज़ा पसंद है, तो वो बनाया है हमने, और किसी को शीरमाल फेनी वगैरह होती हैं वो खाते हैं। सबकी अलग अलग डिमांड्स होती हैं, बच्चों की अलग डिमांड्स होती हैं। भोपाल की ख़ास पहचान अगर देखा जाए तो ये फेनियाँ वगैरह जो होती हैं, तो ये शहरी में ही खाते हैं। फेनी है, कोई दूध टोस्ट खा रहा है, कोई शीरमाल खा रहा है, कोई पराठे और कीमा खा रहे हैं। बहुत से भोपाली लोगों में तो बाकायदा रात में कीमा पक रहा है, कलेजी पक रही है, पराठे तले जा रहे हैं, पूरियाँ तली जा रही हैं। हर चीज़ दुनिया की तकरीबन जो खाई जाती है वेज और नॉन वेज में, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें होती हैं और सबका दस्तरखान वसी होता है। हमारे घर नहीं, सभी के घर में ऐसी रौनक होती है सहरी के टाइम और इफ्तार के टाइम। और जो कंसेप्ट है जो दिया है इस्लाम ने कि सभी को बराबर रखना, चाहे वो नौकर हो चाहे वो कोई भी हो, जब नमाज़ पढ़ें तो एक साथ खड़े हो जाना, एक साथ स्टाफ के लोग हों तो उन्हें खाना खिलाना। तो वो एक शेर है, मुझे शेर याद आ रहा है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ख़ास तौर से रमज़ान की जो रौनकें हैं, वाकई रमज़ान की रौनकें हैं। यहाँ सहरी से लेके अफ्तार तक और अफ्तार से लेके फिर सुबह तक, अफ्तार से सुबह तक की जो रौनकें होती हैं वो वाकई देखने लायक हैं। दुनिया के कई शहर देखें, लेकिन जो रौनक भोपाल में है वो मज़ा शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। भोपाल का शहर बाज़ार पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। रात के 2:30 बज रहे हैं, फिर भी आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर जो रोज़ेदार हैं वो सहरी के लिए किस तरह से यहाँ पे दुकान पे मौजूद हैं। यहाँ के कबाब की बात करें, टिक्के की बात करें, बिरयानी की बात करें, तो उसका अपना एक ख़ास जायका है। आइए आपको भी लिए चलते हैं। दुकानदार और खाने के होटल वाले रोज़ेदारों की इफ्तार और सहरी के लिए ख़ास एहतमाम करते हैं। भोपाल में सहरी के वक्त होटलों में चिकन टिक्का और मलाई टिक्के की फरमाइश ज़्यादा होती है, इसलिए दुकानदार भी इसके लिए ख़ास एहतमाम करते हैं और इनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं बल्कि रोज़ेदारों की खिदमत करना होता है। सर यहाँ पे रोज़ेदार जो होते हैं, चिकन टिक्का हमारा फेमस, मलाई टिक्का ये फेमस, चिकन बिरयानी है, कबाब है, तो बहुत सारे आइटम है। जैसे कब से तैयारी शुरू कर देते हैं रोज़ेदारों के लिए? रोज़ेदारों के लिए हम वैसे तो हमारा काम सुबह 8 बजे चालू हो जाता है, लेकिन 11 बजे सब सामान मिलना चालू हो जाता है। रोज़ादारों के लिए शाम को 4-5 बजे तो बिल्कुल तैयार रहता है, क्योंकि यहाँ के बिरयानी में अलग ही मज़ा है, बहुत ही मज़ा, बहुत ही टेस्टी। और ख़ासतौर पर फ्राइड की बात ही अलग है। फ्राइड जो है ना बहुत ही अलग, मतलब हर मिलता तो हर जगह, लेकिन यहाँ की बात ही जुदा है, बहुत ही मज़ा आता है। तो बिरयानी खाती है और बिरयानी भी, फ्राइड भी, टिक्का भी, ये बहुत मज़ेदार। और यहाँ का सबसे अच्छा ट्विस्टर खाइए आप, बहुत ही अलग ही मज़ा आता है। भोपाल में रोजेदारों के शौक को देखते हुए दुकानदार रमजान के 15 दिन पहले से ही फेनी और बेकरियों में शीरमाल बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। रमजान में भोपाल में फेनी का बड़ा कारोबार होता है। ये फेनी सिर्फ भोपाल में ही इस्तेमाल नहीं की जाती बल्कि पूरे मालवा में इसकी खास डिमांड रहती है। दुकानदारों को माह रमजान का शिद्दत से इंतजार रहता है क्योंकि इस एक माह में फेनी के हवाले से इनका जो कारोबार होता है वो इन्हें साल के दूसरे महीनों में नसीब नहीं होता। भोपाल के बेकरी वाले भी रोजेदारों की फरमाइश पर कई अकसाम की शीरमाल तैयार करते हैं और यहाँ इनका मकसद बिजनेस के साथ साथ रोजेदारों की खिदमत करना भी होता है। सेरे के अंदर जो है रोज़ा ज़्यादातर खाना यही पसंद करते हैं, बाकर खानी हुई, शीरमाल हुई, ये चीज़, पराठे हैं, यही चीज़ पसंद करते हैं। कितना इंतजार रहता है मुबारक महीने का? बस ये होता है कि रमज़ान बस गए और दूसरे दिन से फिर ये हो जाता है कि रमज़ान का इंतजार चालू हो जाता है साथ।
کہ رمضان میں لوگوں کو خدمت کرنا، ان کے لیے اچھا سے اچھا مال بنانا اور اچھی چیز استعمال کرنا، ان ساری چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے رمضان والوں کے لیے، روزہ دار کے لیے ان کو اچھا مال مہیا کرانا۔ رمضان میں جو ہے پھینی اس لیے بکتی ہے کہ لوگوں کو شہری میں یہ بہت پسند ہے، دودھ کے ساتھ میں، اس لیے زیادہ بکتی ہے۔ کم سے کم 7 دن۔ شام کو اچھا خاصا کھا کر کے اور تراویح وغیرہ سے جگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے تھوڑا ہلکا پھلکا محسوس ہو، اس لیے شرمال اور پھینی کو زیادہ استعمال کرتے ہیں لوگ عام طور پر۔ بھوپال میں افطار کا دسترخوان مختلف اقسام کی اشیاء سے سجایا جاتا ہے۔ خواتین گھروں میں بعد نماز عصر افطار کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ پاپڑ، بھجیے اور فروٹ چاٹ وغیرہ کی تیاری تو گھروں پر کی جاتی ہے، تو بازار سے انگور دانے لائے جاتے ہیں۔ رمضان رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ۔ بھوپال کی بات کریں تو بھوپال میں دسترخوان کو وسیع رکھا جاتا ہے، لیکن اس شہر کی خاص بات یہ ہے کہ ماہ رمضان میں یہاں پہ دسترخوان تو سجتے ہی ہیں، عام دنوں میں بھی یہاں کے فرزندان توحید نفلی روزے رکھتے ہیں۔ یہی وجہ کہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ بھوپال میں چاہے آپ عام دنوں میں آئیں یا رمضان کے مہینوں میں آئیں، ہمیں ایک خاص رونق دیکھنے کو ملتی ہے۔ آپ ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ افطار کا وقت ہو گیا ہے اور فرزندان توحید افطار کر کے اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ رمضان میں سب سے زیادہ بزی شیڈیول خواتین کا ہی ہوتا ہے۔ روزہ رکھ کر گھر کی تمام ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام دینا ان کے فرائض میں شامل ہوتا ہے۔ ہمیں جو فضیلت اور رحمتوں والا مہینہ دیا ہے، اس کا اللہ کا بہت لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ اور رمضان میں بہت سی نعمتیں اللہ نے دی ہیں جس کو ہم بناتے ہیں۔ ابھی تو فی الحال ہم چکن فرائی کر رہے ہیں اور اس کے بعد ادھر ہم بھجیے تل رہی ہیں، یہ ابھی کباب بھی بنانا ہے، کچھ میٹھے میں ہے، سیوئی بنانی ہے اور شیر قورمہ ہے۔ جس کو جو پسند ہوتا ہے اس حساب سے ہم بناتے رہتے ہیں۔ کچھ بچوں کے ہیں فرمائش رہتی ہے تو اس حساب سے ہم تیاری کر لیتے ہیں۔ بہت زیادہ خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ دیا ہے۔ خوشی بھی بہت ہوتی ہے کہ افطار میں، سحری میں جو بھی افطار میں بنتا ہے اس میں کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں، اور کچھ بچوں کا بھی کام ہوتا ہے ان کا کر دیتے ہیں۔ سحری کے وقت بھی اچھا لگتا ہے سب کو سحری کرانا، سب کے ساتھ سحری کرنا، تو یہ ساری چیزیں سبھی رمضان میں بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں یہ مہینہ نصیب عطا فرماتا ہے۔ بہت زیادہ خوش نصیب سمجھتے ہیں خود کو، بہت اچھا لگتا ہے اس مہینے میں۔ سب کچھ بہت بدلا، بہت اچھا موسم ہوتا ہے، سب کچھ گھر میں اتنا رونق آ جاتی ہے اور یہ سارے کام کرنا اس وقت بہت اچھا لگتا ہے۔ سب افطار کے لیے بناتی ہوں بھجیے، پنیر پکوڑے، کباب اور دہی بڑے، سب چیزیں بناتی ہوں۔ کچھ چیزیں بازار سے بھی لے کر آتی ہوں۔ ظہر کے بعد تھوڑا سا افطار کا کام کرتے ہیں، پھر عبادت میں لگ جاتے ہیں، تو قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ یہ ضروری رہتی ہے، نماز کی پابندی، تہجد وغیرہ میں ٹائم نکل جاتا ہے۔ تو اس طرح سے 24 گھنٹے کچھ عبادت میں نکلتے ہیں اور کچھ گھر کے کام وغیرہ میں نکل جاتے ہیں بچوں کی خدمت میں۔ خواتین کو گھر میں اپنی عبادت کے ساتھ گھر کے تمام افراد کی خواہشات کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ وہ خواتین جو نوکری پیشہ ہیں، روزہ ان کے کام میں کسی طرح کی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا، بلکہ انہیں اپنے کام اور بہتر ڈھنگ سے کرنے کا حوصلہ عطا کرتا ہے۔ تو رمضان تو اپنے آپ میں ہی ایک ڈسپلن کا مہینہ کہلاتا ہے، تو کس طرح سے دنیا اور دین کے بیچ میں ایک بیلنس بنانا چاہیے، توازن بنانا چاہیے، یہ رمضان خوب سکھا دیتا ہے۔ اور ایک مہینہ روزے ہمیں یہ سکھا دیتے ہیں کہ پورا سال ہمیں کس طرح سے گزارنا ہے۔ ایک طرح سے یہ ہماری تربیت کر کے جاتا ہے یہ پورا مہینہ۔ تو کوشش یہی رہتی ہے کہ عبادت بھی کریں، روزے بھی رکھیں، اور اپنی جو ذمہ داریاں ہماری سرکاری ہیں وہ بھی ہم پوری طرح سے اس کو بھی نبھا سکیں۔ اللہ پاک دیتے ہیں ہمت، وہ صبر دیتے ہیں، سارے کام ہو جاتے ہیں، کوئی بھی کام ایسا ہوتا نہیں ہے کہ رکے۔ کام ہوم ورک بھی ہو جاتا ہے ہمارا، کالج جانا بھی ہو جاتا ہے، پڑھائی بھی ہو جاتی ہے، باقی کے کام بھی ہو جاتے ہیں۔ مئی کا مہینہ اور گرمی کی شدت کے اس موسم میں اس سال روزہ 15 گھنٹے سے زیادہ کا ہے۔ گھر کے بڑے روزے ہوں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بچے روزہ رکھنے میں کسی سے پیچھے رہ جائیں؟ بچے نہ صرف روزہ رکھتے اور عبادت کرتے ہیں، بلکہ روزہ رکھتے ہوئے بچے گھر کے کام میں ہاتھ بھی بٹاتے ہیں اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
मुझे बहुत अच्छा लगता है। मम्मी सुबह में सहरी के लिए उठाती हैं, सहरी करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ी देर के लिए लेट जाते हैं आराम करने के लिए, फिर सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं स्कूल के लिए, स्कूल जाते हैं। वहाँ पे पता ही नहीं चलता कि मैंने रोज़ा रखा है, पूरे आराम से दिन निकल जाता है। फिर घर आती हूँ, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद इबादत करती हूँ, ऐसे ही करके पूरा दिन निकल जाता है। फिर शाम में इफ्तार का टाइम होता है, मम्मी की मदद करती हूँ मैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मियाँ हमको रोज़ा रखने की वो दे देते हैं, तो इसलिए ऐसे हमारा दिन गुजरता है। फिर शाम के लिए शाम की इफ्तारी बनी जाती है, फिर इफ्तार किया जाता है। हमने 14 रोज़े रखे थे, हमारी कोशिश हम पूरे रोज़े रखें। कैसा लगता है रोज़ा रख के? हमें रोज़ा रख के बहुत अच्छा लगता है। अंगूरदाने भोपाल में इफ्तार के दस्तरखान की जीनत होते हैं। भोपाल में अंगूरदाने की दुकानें आपको शहर के हर चौराहे पर मिल जाएंगी। दुकानदारों पर अंगूरदाने की फराहमी के लिए बहुत ज्यादा दबाव होता है, इसलिए दुकानदार रोजेदारों की ख्वाहिश को देखते हुए दूसरे शहरों से भी कारीगरों को बुलाते हैं ताकि वो रोजेदारों की ख्वाहिश के मुताबिक इन्हें अंगूर दाना सप्लाई कर सकें। अरे साहब हम बड़ा खुश होते हैं, नुक्ती है, अंगूर दाने, खारे, और अपना वही रेट है कि जो गरीबों को सबको 120 रुपये किलो देते हैं। वो मस्जिद की ख़त्म की नुक्ती 100 रुपये, कोई आजिज़ी करता तो 80 भी दे देते हैं। क्या करें, ये है सच्चाई, और क्या है। कितना इंतजार रहते हैं मुबारक महीने? अरे ऐसा इस महीने का तो 1 महीने पहले से और तैयारी करते हैं कि ये रमज़ान के अब इतने दिन बचे, इसलिए हम उसकी इंतज़ार करते हैं। ये मशहूर चीज़ है पुरानी भोपाल की, अपनी अंगूरदाने ज़रूरी हैं, नुक्ती ज़रूरी है, बाकी भोपाल के अलावा कहीं नहीं मिलते ये, तो इसके बगैर जो है ना रोज़ा खोला नहीं जाता, मज़ा ही नहीं आता। साहब सबसे पहले हमारे नुक्ती खारे दस्तरखान लगते हैं, उसके बाद ही हमारा दस्तरखान सजता है हमारा। तो जब तक हमारे यहाँ ये नहीं होता मज़ा नहीं आता दस्तरखान में। नुक्ती खारे होना बहुत ज़रूरी है हमारे यहाँ। भोपाल का रोज़ा जो होता है, तो उसका दस्तरखान जो होता है उसकी एक अलग ही शान होती है, क्योंकि रोज़ा अफ्तार जब होता है और दस्तरखान पे अगर नुक्ती खारे ना हो तो रोज़दार को रोज़ा ही नहीं पता चलता है, ऐसा लगता है कि दस्तरखान अधूरा है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, और आज हम मौजूद हैं नवाबों की नगरी, झीलों और तालाबों के शहर, मस्जिदों के शहर भोपाल में। नाज़रीन, प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि भोपाल जो मस्जिदों का शहर कहा जाता है, वो एक ऐसा शहर जहाँ पर आपको हर 10 कदम पर एक मस्जिद देखने को मिलेगी। यहाँ पर माह रमज़ान में यहाँ के फर्जंदान तौहीद यहाँ की इबादत गाहों को किस तरह से सजाते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम, और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें। नाज़रीन, रमज़ान और इबादत ऐसे ही है जैसे जिस्म और रूह का रिश्ता होता है। और भोपाल की अगर बात की जाए तो भोपाल जिसे मस्जिदों का शहर कहा जाता है, यहाँ के फर्जंदान तौहीद अपनी मस्जिदों को, अपनी इबादत गाहों को अपने सजदों से सजाते हैं। भोपाल में मसाजिद की तादाद इतनी है जो हिंदुस्तान के किसी शहर में नहीं है। अगर हम दुनिया की मसाजिद से इसका तकाबुल करें तो पहले नंबर पर मिस्र, दूसरे पर ढाका और तीसरे पर भोपाल का नाम आता है। लेकिन जब माह रमज़ान आते हैं तो यहाँ की मसाजिद अपनी तंगदामनी की शिकायत करने लगती हैं। किस तरह का रूह परवन मंजर होता है, आइए आपको भी लिए चलते हैं। माह रमजान रहमतों और बरकतों का मुबारक महीना है। ये वो मुबारक महीना है जिसे अल्लाह ताला ने अपना महीना करार दिया है। वही तो अल्लाह ने हर इबादत में अजर व सवाब रखा है और बंदा मोमिन हर दिन 5 वक्त की नमाज अदा करके अपने रब का शुक्र अदा करता है। लेकिन माह रमजान की इबादत और सवाब को अल्लाह ताला ने और दिनों की इबादत से 70 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। ऐसे में हर मोमिन की ख्वाहिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा इबादत करके अपने रब का कुर्ब हासिल करे। माह रमजान इबादतों का महीना है, इसलिए हर मुसलमान ये चाहता है कि इस माह में इससे कोई ऐसा काम सरजद ना हो जिससे उसका रब उससे नाराज हो जाए। उलमाए दीन माह रमजान में अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए उम्मत मुस्लिमा से बार बार तलकीन करते हैं। रोज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्ज़ किया है और ये रमज़ान के महीने का रोज़ा होता है। ख़ुद कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया है कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ील कुरान, कि रमज़ान का महीना वो है जिसके अंदर कुरान नाजिल किया गया है। रमज़ान जो है तौबा का महीना है, सब्र का महीना है, मवासात का महीना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा सखावत करो, अल्लाह ने जो दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाओ। रोज़ा दरअसल अल्लाह की उस इताअत का नाम है
जिस में बंदा मोमिन अल्लाह के हुक्म पर एक खास वक्त के लिए हलाल चीजों को भी अपने ऊपर हराम कर लेता है, और जब वक्त इफ्तार का होता है तो अल्लाह के हुक्म से हलाल चीजों से इफ्तार करके नमाज अदा करता है और अपने रब की बेशबहा नेमतों के लिए उसका शुक्र अदा करता है। माह रमजान में अल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा पर नमाज और रोजे की अदायगी के साथ ज़कात और फित्रे की अदायगी का भी हुक्म दिया है, ताकि वो लोग जो गरीब और नादार हैं इन्हें भी खुशी के मौके हासिल हो सकें। माह रमजान कुरान के नुज़ूल के जश्न का महीना है। कुरान आलम इंसानियत के लिए रहनुमाए हिदायत है। इसकी तालीमात किसी एक अहद, किसी एक फ़िरक़े के लिए नहीं, बल्कि तमाम नौए इंसानी के लिए हैं। जिसने भी कुरान को सीने से लगाया और उसकी तालीमात पर अमल किया, उसने गोया दोनों जहां में कामयाबी हासिल की। जब बंदा मोमिन सच्चे दिल से अपने रब के हुजूर सजदे में जाता है तो उसे वो तमाम खुशियां मैसर आती हैं जो इंसानी तसव्वुर से बाहर हैं। तो ये इसका एक समाजी पहलू है कि मालदारों को एहसास हो कि हमारे माशरे में अगर गरीब है तो हमारी जिम्मेदारी है कि उनको हम भूखा न रहने दिया। और इसके बाद इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के महीने का सदका खैरात का महीना बताया है। भोपाल को मसाजिद का शहर कहा जाता है। इस छोटे से शहर में 510 मसाजिद के बावजूद माह रमजान में नमाजियों की इतनी कसरत होती है कि सड़कों और घरों की छत पर भी नमाज तरावीह का एहतमाम किया जाता है। माह रमजान में नमाजियों की कसरत जिस तरह से होती है, इसका असर साल के दूसरे महीने पर भी देखने को मिलता है। उलमाए दीन माह रमजान को मुसलमानों के लिए ट्रेनिंग पीरियड मानते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि माह रमजान इबादतों के मौसम बहार का नाम है। यही वजह है कि इस मुबारक महीने में उलमाए दीन बंदा मोमिन को अपने शब रोज का ज्यादा से ज्यादा वक्त सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत में लगाने की तलकीन करते हैं। मस्जिदों के शहर में माह सियाम में नमाजियों की कसरत को देखते हुए मसाजिद अपनी तंगदामनी की शिकायत करती हैं। यही वजह है कि भोपाल में घरों की छतों के साथ सड़कों और फार्म हाउस पर भी नमाज तरावीह का एहतमाम किया जाता है। सड़क पर होने वाली नमाज तरावीह के इस रूह परवर मंजर को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर इस्लामी शिआर और इसके तकद्दुस को बरकरार रखने के लिए फर्जंदान तौहीद किस तरह से अमल पैरा है। तमाम हजरात जानते हैं कि रमज़ान में ही कुरान नादिल हुआ है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। इस्लाम में जितनी भी इबादत हैं उनमें दोनों पहलू को भी रखा गया है कि जिस्म को भी आपको गोनागो फ़ायदा हो और रूह तो आपकी सरशार हो ही। तो रूह की सुकून की बात तो होती है तमाम इबादत में, हर जगह जितनी भी इबादत हैं रूह की सुकून की बात करते हैं, लेकिन इस्लाम एक तर्ज ज़िंदगी है। लिहाजा हम जब हम नमाज की बात करते हैं तो नमाज में भी जितने भी तमाम उसके जो अमाल हैं वो भी कहीं ना कहीं से जिस्म को फ़ायदा भी पहुँचाते हैं तिब्बी तरीके से, नुक्ते नज़र से अगर देखें तो। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, और आज हम मौजूद हैं आपके शहर भोपाल में। नाज़रीन, प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि भोपाल में रमज़ान में कौन कौन से ख़ास बाज़ार हैं जहां पर ख़ास रौनक देखने को मिलती है। लेकिन उससे पहले तो थोड़ा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम, और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें। नाज़रीन, भोपाल में रमज़ान की ख़ास रौनक देखने को मिलती है। हमें देखते हैं कि एक ऐसा शहर है जहाँ पर माह रमज़ान के पहले अशरे से ही ख़ास भीड़ हमें देखने को मिलती है। हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में कुछ ख़ास बाज़ार हैं जहाँ पर रमज़ान की ख़ास रौनक हमें देखने को मिलती है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम भोपाल के चौक बाज़ार में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि माह रमज़ान का भी ये शुरुआत का दिन है, लेकिन यहाँ पर एक ख़ास रौनक हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर कौन कौन से ख़ास बाज़ार हैं, माह रमज़ान में किस तरह की ख़ास रौनक रहती है, आइए आपको ले चलते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में। माह रमज़ान में इबादत के साथ ईद की तैयारियां भी अहम हिस्सा होती हैं। भोपाल के दुकानदारों को ईद के बाजार का साल भर इंतजार रहता है। आमतौर पर दूसरे शहरों में माह रमजान के आखिरी अशरे में बाजारों में भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन भोपाल में पहले अशरे से ही नहीं बल्कि पहले रोजे से खरीदारी शुरू हो जाती है और जैसे जैसे माह रमजान रुखसत होता जाता है शहर के ईद बाजार के रौनक अपने शबाब पर पहुंच जाती है। भोपाल के रोजेदार
रमजान के पहले अशरे से खरीदारी शुरू कर देते हैं। इसके लिए रोजेदारों के अपने जवाज हैं और इनका मानना है कि आखिरी अशरे के आते आते अच्छा माल छट जाता है, इसलिए वो पहले ही खरीदारी कर लेते हैं। और कुछ रोजेदारों का ये भी मानना है कि अल्लाह ने आखिरी अशरे में शब कद्र रखी है, इसलिए वो आखिरी अशरे को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत में लगाना चाहते हैं। हर साल कुछ नया पहनने की नीयत रहती है। इस साल कुर्ता पजामा पहनने की नीयत है, उसी ताल्लुक़ से मार्केट में निकला था। और रहा सवाल पहले अशरे की ख़रीदारी का, तो उसमें क्या है, सुकून से काफ़ी कुछ ख़रीद लिया जाता है, अपनी पसंद का छांट लिया जाता है। और फिर बिलखुसूस आखिरी अशरे के अंदर शब कदर की एक अपनी अहमियत है, तो आखिरी अशरा तो पूरा इबादत में गुजरे, इसी की नीयत रहती है। इसके अंदर क्या रहता है कि ईद के जैसे अपन लोग पठारी सूट है या शलवार सूट है, उसके हिसाब से यहाँ पर वैरायटी अच्छी मिलती है। ईद के मौके पर ये लोग अच्छी वैरायटियाँ लाते हैं, तो अपन का एक भरोसा है इन दुकान के ऊपर के ये अच्छी वैरायटी है, तो अपन यहाँ पहनने की कोशिश करते हैं और हमारे दोस्तों को भी हम लाते हैं, कोशिश करते हैं। नहीं, अपन ये रहता है कि थोड़ा डिज़ाइन के हिसाब से अच्छे ले आते हैं, डिज़ाइन जो शलवार सूट पे भी जमे और अपन को भी अच्छा लगे और नया लगे। थोड़ा पूरे महीने कुर्ता पजामा पहनना है तो उसके हिसाब से जूतों की तो सिलेक्शन कुछ करना ही पड़ेगा। रमज़ान के लिए जूता तो पहन नहीं सकते, तो कुछ चप्पल में कुछ नई वैरायटी हो, कुछ लोफर्स में हो, तो जो शलवार कमीज़ पे या कुर्ते पजामे पे पहना जा सके रमज़ान भर। भोपाल में यूं तो बहुत से बाजार हैं, लेकिन ईद की तैयारियों की बात की जाए तो कुछ खास बाजारों में खास रौनक देखने को मिलती है। इन बाजारों में चौक बाजार, नदीम रोड, न्यू मार्केट, शब्बन चौराहा, जहांगीराबाद, इब्राहिमपुरा, काजी कैंप वगैरह के नाम काबिल जिक्र हैं। 15 घंटे से ज्यादा वक्त का रोजा और इस पर महंगाई का सितम, इसके बावजूद यहाँ के दुकानदारों को अच्छे बिजनेस की उम्मीद है। इसी उम्मीद पर दुकानदारों ने अपनी दुकानों पर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अलावा बैरून मुल्क के सामान से भी अपनी दुकानों को सजा रखा है, ताकि खरीदार एक बार दुकान पर आने के बाद बगैर खरीदे हुए वापस न जा सके। सोबर आइटम ही चलता है साहब इस टाइम रमज़ानों में। बाकी अभी शादी का सीज़न होता है तो उसमें थोड़ा चमक वगैरह चलती है, बाकी सोबर आइटम ही चलेगा, सिंपल सोबर। तब सभी जगह का मेंटेन करना पड़ता है साहब। अभी तो डिमांड ज़्यादा हो गई है, दुकानें ज़्यादा बढ़ गई हैं, इस हिसाब से आप समझ लो दिल्ली का, सूरत, अहमदाबाद, बाकी सब जगह के लाना पड़ता है, बॉम्बे वगैरह का भी आता है। पहले रोज़े से मतलब यहाँ भोपाल के अंदर ख़रीदारी शुरू हो जाती है, उस सिलसिले में बस ये पहले से ही परचेज़ कर रखा है और उसकी तैयारी मुकम्मल कर रखी है हम लोगों ने। इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। भाई गोटा पत्ती पे काम चल रहा है, जारजट पे माल आ रहा है और शिफान पे चल रहा है, भाई लेके ला के रख रहा है नया नया आइटम। अब कस्टमर की डिमांड हैगी, जो पसंद आएगा बिकेगा, बाकी स्टॉक तो हम कर ही रहे हैं माल लेके। भोपाल में ईद के मौके पर खवातीन में सबसे ज्यादा डिमांड सिल्क के कपड़ों पर सीप सितारा, मोती वर्क्स, जरी, जरदोजी से बने हुए कपड़ों की होती है, तो मर्दों में पाजामा और कुर्ते की डिमांड है। मर्दों में सबसे ज्यादा डिमांड लखनवी कुर्ता पाजामा और पठानी सूट की है। रोजादारों की फरमाइश के मद्देनजर दुकानदारों ने रमजान के एक माह पहले से ही अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। कस्टमर की नई नई चॉइस होती है, उसी हिसाब से यहाँ पर लखनऊ का माल आता है। बेहतरीन वैरायटी हम लखनऊ की लेकर आते हैं और कस्टमरों को पसंद आती है। देखिए अब ये जो हमारी दुकान के अंदर आपको दिख रहा है, सब एक से बढ़कर एक, आपको पहनाएंगे तो आप भी स्मार्ट लगेंगे। तो ऐसी चीज़ लेके आते हैं जो कस्टमर देखे और पहने और स्मार्ट लगे। भाई मेरे पास तो बहुत सारी वैरायटी है। मैं तकरीबन भोपाल में 25 साल से यहाँ लोगों की खिदमत पे लगा हुआ हूँ और इस दफ़ा मेरे पास लखनवी बहुत अच्छे अच्छे आइटम है, पठानी सूट है, लखनवी कुर्ते पजामे हैं। खास तैयारी तो हम लोगों की रमज़ानों में कपड़ों पे रहती है, क्योंकि अफ्तार भी होते हैं, काफ़ी जगह दावतें होती हैं, तो हमें नए कपड़े पहन के जाना होते हैं। और ख़ास तौर से अलविदा का जुमा आता है, उसके लिए हम कुर्ता पजामा सिलवाते हैं। और ईद पर तो नया कुर्ता पजामा होता ही है, तो हम लोगों ने अभी से हम लोग शुरू से देखना चालू कर देते हैं। नए नए डिज़ाइन मार्केट में आते हैं, तो अभी से हम रमज़ान के लिए ले लेते हैं। और अभी हम और इसके बाद भी मार्केट आएंगे तो हम ईद के लिए कुर्ता पजामा लेके जाएंगे। रमज़ान के पहले अशरे में इसलिए हम ख़रीद फ़रोख्त कर रहे हैं क्योंकि रश कम होता है और उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है रश बढ़ता जाता है, तो इन सब चीज़ से बचने के लिए
हम पहले आ गए। बनाऊंगी ईद, अल्लाह ताला ने पूरे महीने की इबादत तो करूंगी, जितनी भी हो सकेगी इबादत करूंगी, और उस अल्लाह से दुआ मांगूंगी कि आने वाले लोगों के लिए इस बीमारी को अल्लाह ताला सबको खुश खुर्रम दे, बीमारियों से बचाए और उसको मतलब इबादत करने का मौका दे, पूरे रोज़े रखने की इबादत दे, हिम्मत दे, ताकत दे, ईमानी जज्बा, जिस्मानी जज्बा उनको अल्लाह ताला दे। रमज़ानों में बच्चों को सबसे ज़्यादा रहता है नए कपड़ों का, तो इनके लिए मैं नए कपड़े ले रही हूँ। लखनवी सूट, वो नमाज़ पढ़ने जाते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो लखनवी सूट में वो उनसे और रौनक बढ़ेगी। जूते चप्पल की दुकान हो या चूड़ियों की दुकान, सब पर खरीदारों की भीड़ इस कदर दिखाई दे रही है कि पहले अशरे से ही रास्ता चलना मुश्किल हो रहा है। इस बार फिरोजाबाद की चूड़ी तो हर समय आती थी, इस बार दिल्ली की, जयपुर की, वो कलकत्ता की चूड़ी विशेष तौर से आई हैं। तो कैसा बाजार जाने की उम्मीद है रमजान? उम्मीद अच्छी है, अच्छे जाएगा बाजार, बहुत बढ़िया जाएगा। हर साल की अपेक्षा इस साल और अच्छा जाएगा। मैंने इस बार पहले अरसे में शॉपिंग पूरी अपनी कर ली। यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी वैरायटीज़ आएंगे, पाकिस्तानी लॉन आए, बहुत खूबसूरत डिज़ाइंस आए, बहुत खूबसूरत प्रिंट्स आए। ये तो माहौल, और रमज़ान का माहौल इतना खूबसूरत, इतना अच्छा होता है कि घर में इबादत करते हुए वक्त निकल जाता है। तो मेरा मानना है औरतों को घर में इबादत करना चाहिए। इतना खुश रौनक माहौल होता है बाहर का कि आपको दिल ही नहीं चाहेगा। इसलिए मैं सारी औरतों से ये कहना चाहूँगी कि आप पहले अरसे में ही अपनी सारी शॉपिंग मुकम्मल करके रखें, ताकि ये रमज़ान का महीना तो एक ही बार आता है, तो इबादत करना चाहिए, घर में नहीं चाहिए। इतनी खुशियाँ, इतनी रौनक का माहौल है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है घर में रहना, इबादत करना, इफ्तारी बनाना। ईद पर मैंने पिछली बार प्लाजो कुर्ता पहना था, इस बार मैंने आके अल जदीद में देखा तो बहुत ही खूबसूरत कुर्ते, पाकिस्तानी डिज़ाइनर कुर्ते हैं, तो मुझे बहुत पसंद आए। रमज़ान आते हैं, ईद आती है, लोगों के दिलों में खुशी होती है। खुशी है इबादत करने की, खुशी है अब बच्चों के साथ रोज़ा रखने की, और खुशी है अपने साथ में बैठकर इफ्तार करने की, सहरी करने की। लेकिन थोड़ा सा दिल में डर भी है कि बच्चों की जो ज़रूरतें हैं वो हम कैसे पूरा करेंगे, उनको हम कैसे पूरा करेंगे। तो बस इसीलिए हम पहले अशरे में ही निकल पड़े कि अभी थोड़ा भीड़ भी कम है अभी माहौल में, और इसलिए हम देख लें कि ज़रा सा बच्चों को साथ में लाएंगे तो हमको कहाँ लेके जाना है और क्या उनको दिखाना है, ताकि हमारे बजट में भी बैठ जाए और उनकी खुशी भी रह जाए। ईद की तैयारियों की बात हो और खुशबू के साथ टोपियों का जिक्र न हो, ये कैसे हो सकता है? इत्र फरोशों ने मुल्क को बैरून मुल्क से इत्रियात का एक बड़ा कलेक्शन तो अपनी दुकान में जमा ही किया है। इनकी दुकानों पर इत्र और परफ्यूम की भी बड़ी वैरायटी देखने को मिल रही है। रोजदारों के लिए ये होती है कि कोई नया आइटम मिले हमें, बिल्कुल नया आइटम होना चाहिए, कोई ऐसा पुराना नहीं चलता है। इस वक्त तो सब चाहते हैं बिल्कुल कोई नया आइटम हो बिल्कुल। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये चल रहा है आजकल, ये नया आइटम है, और ये अफगानी ये चल रहा है आजकल, ये मांग रहे हैं इसकी, और एक ये चल रही है मौलवी साद साहब के नाम से, ये वाली बहुत मांग रहे हैं, ये बहुत चल रही है आजकल। ये ज़्यादातर ग्राहक चाहता है बिल्कुल नया आइटम हो कोई, हमें हर साल की तरह नहीं हो। बस इस बार भी हम लोग नए आइटम लेकर आए हैं बहुत सारे। ईद के लिए क्या खास टोपी पहनेंगे? ये अच्छी लखनवी टोपी अच्छी। ये वाली टोपी इस बार कुछ खास एहतमाम नमाजों का होगा? हाँ इंशाल्लाह होगा, हर साल होता है, इस बार भी होगा। मैं ख़ास टोपी इंडोनेशियन और चाइनीज़ ज़्यादा पसंद करता हूँ। उसके अलावा ये हक्कानी टोपी जो है आजकल ओवैसी टोपी के नाम से भी जानी जा रही है, ये मुझे बहुत पसंद है और इसकी प्राइस भी रीजनेबल है। हम तो हर बार नई टोपी लेना आते हैं और इस बार भी नई टोपी पहनकर नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे। कौन सी टोपी पसंद आई? ये वाली है। इत्र फरोशों ने जहां कुछ खास इत्रियात के मजमुए तैयार किए हैं, वहीं टोपियों की दुकान पर मुख्तलिफ ममालिक की टोपियों की भरमार है। क्या कहते हैं दुकानदार, आप भी सुनिए। लगाना सुन्नत है इधर, और तरावी पढ़ने आते हैं सब लोग, तो खुशबू लगा के आते हैं, उसमें सवाब भी मिलता है और अच्छा महसूस होता है खुशबू। सभी कन्नौज का है, बाहर सऊदी से आता है, दुबई से पैकिंग वाले इधर आते हैं, नए नए परफ्यूम के, अरेबी का। आजकल लोग परफ्यूम भी मांगने लगे स्प्रे में, जैसे इत्र चलता है, इत्र कोई स्प्रे फॉर्म में मांगने लगे। और अलग अलग नौजवानों की अलग अलग वो रहती है रिक्वायरमेंट, नई स्मेल, परफ्यूम स्मेल, इंग्लिश फ्रेगनेंस। अभी तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि बच्चों का मामला है, तो अभी से तैयारी इंशाल्लाह शुरू कर दी उसकी, और फिर पूरे ईद अच्छे से मनाई जाएगी। फिर रमजान अपने आप को इतना खुश नसीब मानते हैं कि अल्लाह जितना सजदे पड़ रहे हैं तो कम है, इतना माशाल्लाह जो है कि रमजान मुबारक पाके खुश हैं। भोपाल वो तारीखी शहर है जहाँ की मसाजिद से सहर के वक्त उठने वाली आज़ान की सदाओं ने शायर मशरिक अल्लामा इकबाल को इतना मुतासिर किया कि इकबाल ने कहा कि वो सहर जो कभी फरदा कभी है इमरोज़, नहीं मालूम कि होती है कहाँ से पैदा, वो सहर जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद,
होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। नाज़रीन, भोपाल से माह रमज़ान के शब व रोज़ पर मबनी न्यूज़ 18 उर्दू का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें यहीं पर ख़त्म होता है। इसी के साथ नाज़रीन, कल सुबह 3 बजे हमारा ख़ास लाइव प्रोग्राम सहरी टाइम देखना ना भूलें। फिलहाल नाज़रीन, वक्त हो चला है आपसे रुखसत होने का। कल इंशाअल्लाह किसी एक और नए शहर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ महताब आलम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया।